Okay, so we have started with exception handling in Python. So कल हमने देखा था कि एक्सेप्शन कैसे हैंडल करना है विद दिस एग्जांपल। जैसे ये एक एग्जांपल है, डिवाइड फंक्शन है जिसमें, और वी आर ट्राइंग टू, इफ वी ट्राई टू डिवाइड एनी नंबर बाय 0, इट विल गिव यू एरर, राइट? सो टू मैम मैम सर बोल रहे थे कि जितने भी रिकॉर्डेड क्लासेस है उनको वो डिपार्टमेंट में आपको शेयर करने के लिए बोल रहे थे। यस यस, बोल आज देना मैम। आज हमारा सिलेबस खत्म होने वाला है, देन आई विल बी अपलोडिंग ऑल द वीडियोस, ठीक है? ठीक है मैम। So today probably this will be our last lecture. सिर्फ थोड़े बहुत पॉइंट्स बचे हैं तो हम आज कवर कर लेंगे, ठीक है? सो कल हमने देखा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए 4 मेन ब्लॉक्स है: ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली, राइट? उसका फ्लो भी हमने कल समझा था विथ वन एग्जांपल, विथ दिस एग्जांपल, ठीक है? Then I have shown you types of exception. So we have different types of exception that we can handle in our program. These are built-in exceptions. Okay. Now built-in exception will uh, this built-in exception can arise automatically if you include that code inside try except. But if manually you want to raise the exception in some other condition, then you can write you can raise that exception using raise keyword. So raise followed by name of that exception, and in bracket you have to give the message that you want to print. Okay, जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, जस्ट जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एक फंक्शन है चेक पॉजिटिव, जो नंबर को पॉजिटिव है या नहीं चेक कर रहा है। लेकिन अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो हमें एक एक्सेप्शन रेज करना है वैल्यू एरर का, राइट? सो नॉर्मली वैल्यू एरर का मैसेज नंबर चेक होने के बाद नहीं रेज होता है। वैल्यू एरर का मैसेज कब रेज होता है? when built-in operation or function receives an argument that has right type but an inappropriate value. जैसे कोई फंक्शन के लिए आपको स्ट्रिंग पास करना है लेकिन वहाँ पे आप इंटीजर पास कर रहे हो, या इंटीजर पास करना है वहाँ पे आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो। इन दिस केसेस वैल्यू एरर इज यूजुअली वैल्यू एरर एक्सेप्शन इज यूजुअली रेज्ड। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है कि अगर नंबर निगेटिव है तो वैल्यू एरर रेज करना है, सो दैट वी कैन डू यूजिंग रेज कीवर्ड। तो ये क्या करेगा कि अगर नंबर आपका लेस देन 0 है तो ये वैल्यू एरर वाला एक्सेप्शन रेज करेगा, और जिसमें हमने मैसेज दिया है द नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, और ये अभी जो रेज हुआ ये रेज कब होगा और ये मैसेज कब प्रिंट होगा, दैट यू कैन सी हियर। तो कोड हमें कहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट में ही लिखना है। सो प्रिंट चेक पॉजिटिव -10। तो यहाँ पे अगर आपने -10 लेस देन 0 वैल्यू दिया तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वी आर कॉलिंग द फंक्शन, सो इट विल गो इनटू चेक पॉजिटिव, number will be assigned with -10. Inside that it will check if number is less than 0. So yes, our number is less than 0, so it will raise value error, right? The number must be positive. So your execution will stop here. It will raise this value error, it will print this message, and program will stop. Okay, this is how we can explicitly raise exception in our code. Okay, then next part in exception we have is user defined exception. Okay, so we have many standard built-in exceptions, but still if you want to write your own exception, still if you want to define your own exception, you can do that by inheriting exception class. Okay, so here you can see I want to define a new exception called negative numbers. This is the name of my class, so you have to define a exception using class. So class negative numbers, this class will extend exception class, which is the base class for all the exceptions. Okay, so negative numbers in bracket exception, inside that you can give your own message. Okay, so again we have written init method inside this class.
So self, along with self, we are giving message. So whatever message you want to give for your exception, you can give here. Along with message, you can, if you want, you can give values as well. Okay. Now, next, this is only the definition of exception. Now, how to use that exception in your class? Again, using raise, right? How to use this exception in your program using raise. जैसे हमने मैन्युअली एक्सेप्शन रेज किया था यूजिंग रेज कीवर्ड, सेम लाइक दैट we can raise our exception, but here now the exception name will be the class which we have defined. Okay, so define risky function. This is the name of function actually, and we are passing number to it. So if number is less than 0, we are raising negative numbers. Okay, this is the exception that is created by us, and we are passing some message. Now from where did this negative number exception will be raised? So from our code, when we'll call this function with the number which is negative, in that case it will raise the exception. So here try, and we are from print we are calling our risky function with -10 value. So if you are passing -10, again it will go to this risky function. It will check if number is less than 0. So yes, number is less than 0, it will raise negative numbers exception. Okay, and it will print the message. Now how to print that message? That message can be fetched by using e dot message. Okay, so accept negative numbers as e, right? And then we'll print e dot message. So e dot message will be this message, something went wrong. Got it? आया समझ में ये? Yes, ma'am. Okay. So these all are the concepts related to exception. Now we are going to see file handling in Python. Okay. So what is file handling? See, in if in your program you want to read some external file, जैसे कोई टेक्स्ट फाइल है आपको रीड करना है, या फिर कोई टेक्स्ट फाइल है जिसमें आपको राइट करना है, और इफ यू वांट टू अपेंड सम टेक्स्ट टू दैट फाइल. सो अगर ऐसे फाइल ऑपरेशंस आपको करने हैं, सो फॉर दैट इन पाइथन there are many functions to handle the files. Okay, so file handling in Python is a crucial aspect that allow you to read from and write to the files. And this feature is essential for data storage, data manipulation, data retrieval. Now, file handling in Python will include opening the files, reading from the files, writing to files, and closing the files. Okay. Now we'll see one by one operation. First of all, opening a file. So very simple. It is very simple in Python actually. To open a file, simply you have to use open function. In open function, you will give path of your file or name of your file if it is in the same folder as your program. Then you just have to give name of the file, comma, the mode in which you want to open the file. Okay, so there are certain modes in which you can open your file. So those modes are listed here. R, that means read mode. So if you are giving read, you can only read that file. It will open file for reading. If you want to write into the file, you have to open your file either in write mode or in append mode. So either you can give W or A. Okay. So in which case you can give W. See here, W means write mode. It will open a file for writing. So if file is existing, it will open the file and it will delete all the data inside that file, and it will start writing from beginning. Okay, if you are opening any file in append mode, okay, so again there will be two condition. अगर फाइल एग्जिस्ट है तो एग्जिस्टिंग फाइल ओपन हो जाएगा, उसमें जो भी डेटा है उसके आगे से राइटिंग शुरू होगा. ठीक है, जो पहले डेटा है वो डिलीट नहीं होगा जैसे राइट में होता है. अगर आप डब्ल्यू मोड देते हो, डब्ल्यू मोड में भी हमारे पास टू कंडीशन हो सकती है, एक तो फाइल एग्जिस्ट है, एक तो फाइल एग्जिस्ट नहीं है. राइट, अगर फाइल एग्जिस्ट है तो उसमें जितना भी डेटा है वो चला जाएगा,
और राइटिंग बिगिनिंग से शुरू होगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो राइट मोड विल क्रिएट अ न्यू फाइल। ठीक है, सेम लाइक दैट अपेंड मोड में क्या होगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो क्रिएट कर देगा और स्टार्टिंग से बिगिनिंग से राइटिंग शुरू होगा। लेकिन अगर फाइल आपका एग्जिस्ट है देन व्हाट इज नेम ऑफ दिस ऑपरेशन, अपेंड। अपेंड मीन्स कंबाइन और एडिंग टू द एग्जिस्टिंग। सो एग्जिस्टिंग जो डेटा है फाइल में एज इट इज रहेगा, राइटिंग जो है वो उसके आगे से शुरू होगा। दिस इज कॉल्ड एज append mode. And then one more mode is there, that is B. So this B mode is used with other modes, like we can use RB, WB like that. And this binary mode is used with other mode to open file in binary format. अगर आपको बाइनरी फॉर्मेट में फाइल रीड करना है तो यू कैन गिव RB। अगर आपको बाइनरी फॉर्मेट में फाइल राइटिंग के लिए ओपन करना है तो यू कैन गिव WB। सो दिस B मोड इज एक्चुअली यूज्ड विथ अदर मोड्स, जैसे RB किया हमने, WB किया, AB किया, ऐसे कर सकते। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? We are going to see program for this. Right now I'm just explaining. Any doubt? No, ma'am. Fine. Okay, now next operation, reading from the file. So we have seen, to read from the file you have to first open that file in read mode. Okay, so once your file is open, there are different methods to read from the file. Okay, so you can use simple read function. The read function has a size operator, you can see here. Just utilize it. So this read method has a size operator. So if you specify this size operator, it will read specified number of bytes from the file. अगर आपने size mention नहीं किया है तो ये read function entire file, पूरा file read करेगा। Okay, now next we have read line. ये read line क्या करता है, one line from file read करता है, it will read only one line from the file. Okay, and read lines will read all the lines from file, return them as a list of strings. ठीक है, रीड लाइन क्या करता है, इट विल रीड ओनली वन लाइन। लेकिन अगर रीड लाइंस फंक्शन आपने यूज किया तो ये क्या करेगा, इट विल रीड ऑल द लाइंस फ्रॉम फाइल और रिटर्न क्या करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। सो एवरी लाइन ऑफ योर फाइल विल बी अ स्ट्रिंग। ऐसे जितने भी लाइंस है उतने एलिमेंट्स का लिस्ट रिटर्न करता है रीड लाइंस। Okay, one example is given here. So for reading purpose you first have to open the file. So कैसे open करेंगे, using open function, give file name comma mode R, okay, and content is equal to file dot read. So यहाँ पे हमने कुछ size mention नहीं किया है तो ये क्या करेगा, it will read entire file। और वो फाइल रीड करके उसका कंटेंट हमने कंटेंट नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है, उसके बाद आप उसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, एंड नेवर forget to close the file. Once you are done with all the operations performed on that file, you should always close that file. Okay, so for closing we have file dot close. Next operation on file is writing to a file. Okay, so obviously अगर आपको write करना है फाइल में तो you can use W और you can use A. Okay, so जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप W मोड में ओपन करते हो तो एग्जिस्टिंग डेटा आपका पूरा वैनिश हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप A मोड में ओपन करते हो तो एग्जिस्टिंग डेटा एज इट इज रहेगा, उसके आगे राइटिंग शुरू होगा। सो इट डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आपको किस मोड में फाइल ओपन करना है। Okay, now after opening the file, for writing purpose we have a function, we have two functions, write and write line, write lines. Okay, write फंक्शन को आपको स्ट्रिंग पास करना है, जो भी आप स्ट्रिंग पास करोगे वो उस फाइल में लिख देगा। राइट, एंड नेक्स्ट इज राइट लाइंस, जिसका पैरामीटर है लिस्ट। तो राइट लाइंस को आपको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग प्रोवाइड करना है,
तो जितने भी स्ट्रिंग में एलिमेंट, जितने भी लिस्ट में स्ट्रिंग एलिमेंट्स होंगे उतने लाइंस वो उस फाइल में लिखेगा। ठीक है, जैसे हमने रीडिंग के लिए देखा था रीड लाइंस, जस्ट लाइक दैट वी हैव राइट लाइंस फॉर राइटिंग। कृष्णा कुमार उसकी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। पी सीरीज का जो मालिक है सुलसन कुमार। Okay, this is about writing the file. Then next, last operation but not the least, because it is very important to close the file after you are done using it, to free up the system resources. Otherwise, if you are using that file in your Python program, okay, if you keep that file open, you will not be able to use that file in any other program or anywhere else, right? Because it will be already in use. So make sure to close the file once you are done with the operations on that file. ठीक है, आपने रीडिंग के लिए ओपन किया है, राइटिंग के लिए ओपन किया, किसी भी चीज के लिए ओपन किया है फाइल, so don't forget to close that file. And for closing, very simple function is there, that is close. So you just have to write file dot close. But what is file? File is an object in which we have called this open method with file name and mode. ठीक है, any doubt in file handling? Yes, is it clear to all? Yes, ma'am. Okay. Okay, and now last topic, which is very small topic included in your syllabus, which is last module, that is standard library. Okay, so we have already used many times standard library function. So standard library is nothing but the collection of modules and packages included with Python distribution, राइट? तो जैसे आप पाइथन इंस्टॉल करते हो आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, तो पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ ही पाइथन का जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो आ जाता है. Functions or modules inside that standard library you can directly use. You don't need any installation for standard library, right? जैसे डेटा टाइप हम यूज करते हैं प्रोग्राम में, तो डेटा टाइप के लिए हमने कभी भी कुछ इंपोर्ट नहीं किया, राइट? फाइल हैंडलिंग अभी हमने देखा, फाइल हैंडलिंग के लिए भी जो फाइल रिलेटेड फंक्शन है वी आर डायरेक्टली यूजिंग देम, राइट? सिस्टम ऑपरेशन से जैसे इनपुट है आउटपुट है वो भी हम यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में. दिस ऑल फंक्शंस आर कमिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. Okay, so the standard library is the power of Python, is a very powerful tool of Python which provide you a wide range of functionalities without requiring any additional installation, right? जैसे हमने मैथ का भी यूज किया था, या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए भी हमने कुछ एबीसी क्लास मॉड्यूल इंपोर्ट किया था. सो ऑल दीज आर कम इनटू स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. ओके, और व्हाट आर की फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी? This standard Python library is very huge. There are thousands of functions, thousands of modules written inside it. So it makes your task easy, right? You don't need to write code for everything. Many codes which are mostly frequently used in programs, they are ready made. So you can directly use it. दे आर पोर्टेबल एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म. सो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करो, विंडोज़ है या लिनक्स है या मैक ओएस है, कोई भी ओएस पे पाइथन आप इंस्टॉल करोगे तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी उसके साथ आता ही है. उसको इट विल वर्क सीमलेसली, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसको आपको अलग अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे आप पाइथन इंस्टॉल करते हो, इट विल that standard library will come along with it. Okay, and this library is also well documented. There is an official website of Python, python.org. If you go and check this website, python.org, you will see all standard library functions explained with example on that.
सो पाइथन में कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, कभी भी आपको ऐसे कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए, आपको चेक करना है कि इसके लिए कुछ रेडीमेड फंक्शन है या नहीं, तो आप python.org पे जाके वो फंक्शन का लिस्ट, मॉड्यूल पैकेजेस का लिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें कौन कौन से फंक्शंस डिफाइन किए हैं, कौन से फंक्शन का पर्पस क्या है, और वो फंक्शन कैसे यूज करना है, ये सारे डिटेल में आपको python.org पे मिल जाएगा। ठीक है। So this is all about the standard library. One example I have included. There is a module called date time, okay, which is used to perform operations related to date time. Okay, जैसे हमें current date time चाहिए तो we can directly use datetime.now, so it will give you current date and time. Okay, अगर आपको specific format में date चाहिए वो भी आप इसे फेच कर सकते हो, इसे रिटर्न करवा सकते हो। सो this is just a small function, but we have already used standard library, so you know what is standard library and all about that, right? We have many important modules in Python which are used for data science, like NumPy, Pandas, sklearn. Many more libraries are there. So according to our requirement, we import that library, and many functions in Python even not require this import as well. जैसे हम इनपुट करते हैं, प्रिंट यूज करते हैं, प्रिंट के लिए भी हमने कुछ इंपोर्ट नहीं किया है यहाँ पे, राइट? या इनपुट से आप कुछ लेते हो तो उसके लिए भी हमें कुछ ये नहीं लगता है, इंपोर्ट करना नहीं पड़ता है, राइट? तो कुछ कुछ ऐसे फंक्शनैलिटीज है कि जिसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, बट ऑल दे आर पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। ठीक है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद दिस यूनिट। कुछ कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल्स थे, उनका मैंने सेपरेट यूनिट नहीं बनाया, उनको मैंने इसी में ऐड कर लिए। ठीक है। तो इसके साथ हमारे सारे मॉड्यूल्स भी खत्म हो गए, हमारा पूरा सिलेबस भी खत्म हो गया है। सिर्फ आज हमने जो एक्सेप्शन हैंडलिंग देखा उसका हम एक असाइनमेंट, और फाइल हैंडलिंग का एक असाइनमेंट देखेंगे। ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। हम लोग इसे हैंडलिंग पे प्रैक्टिस नहीं की। आवाज नहीं आ रही है मुझे। एक्सेप्शन हैंडलिंग पे हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, हाँ वही मैं बता रही हूँ। प्रैक्टिस नहीं की। हाँ हाँ वही मैं प्रैक्टिस अभी लेने वाली हूँ, उसका प्रैक्टिस असाइनमेंट। और जितने भी रिकॉर्डिंग्स बचे हैं तो आज या कल में मैं सारे रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड करूँगी, जो नोट्स है वो भी मैं क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगी, और जो भी प्रोग्राम्स हमने देखे वो सारा मटेरियल मैं क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी। ठीक है। ठीक है। यस मैम। ओके। और एक बात, आपका जो 30 मार्क्स का इंटरनल इवैल्यूएशन है, तो उसके लिए मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी। ओके। तो अटेंडेंस और असाइनमेंट के बेसिस पे आपका वो 30 मार्क का इवैल्यूएशन होगा। ठीक है। तो जो मैं असाइनमेंट आपको दूंगी, आपको आपके खुद के हैंड राइटिंग में पेपर पे लिख के, पूरा असाइनमेंट लिख के, उसके सारे फोटोज निकाल के एक पीडीएफ बनाना है, और वो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है। लेकिन वो जो असाइनमेंट है वो आपको आपके डिपार्टमेंट में भी सबमिट करना है। समझ में आया? कौन है आपके यस मैम। क्लास का, कोई अगर सीआर है या फिर कौन है तो आप प्लीज नोट डाउन करके रखो, क्योंकि आपको ये मैसेज भी बाकी जो आज नहीं ज्वाइन हुए हैं उनको भी पास करना है कि वन असाइनमेंट विल बी गिवन। ठीक है। तो वो जो असाइनमेंट होगा उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो उससे आपका डबल बेनिफिट होगा कि वो जो असाइनमेंट होगा उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो आपको फाइनल एग्जाम के लिए भी वो यूज आएगा। और अभी जो इंटरनल इवैल्यूएशन है उसके लिए भी मैं उसी से इवैल्यूएट करूंगी। इसमें कुछ डाउट, क्वेरी? मैम पेपर सॉरी, मैम पेपर में लिखना है क्या? आवाज पेपर आ में रही? लिखने हैं आपको, जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो आपको पेपर में लिखने हैं। ठीक है।
जैसे मान लो 10 क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको पेपर पे लिखने हैं। वो जिस पेपर पे आप लिखोगे उस पेपर के ऊपर आपका रोल नंबर और नाम रहेगा। ठीक है, फिर एक बार आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, जैसे मान लो 10 पेजेस का असाइनमेंट आपका बन गया, तो आप 10 फोटोज निकालेंगे। कुछ वो मोबाइल में ऐप भी आते हैं जिससे आप फोटो से पीडीएफ बना सकते हो, राइट, डॉक स्कैनर या कुछ। तो वैसे ऐप यूज करके आप जो भी 10 फोटोज निकालोगे उसका एक ही पीडीएफ बनाना है। ठीक है, 10 फोटो निकाले तो 10 फोटो अपलोड नहीं करने हैं, उसका एक ही पीडीएफ बनाना है और वो मुझे सेंड करोगे आप। लेकिन आप जो आपका जो फिजिकल असाइनमेंट होगा, जो पेजेस होंगे, वो आपको आपके डिपार्टमेंट में सबमिट करने हैं। ठीक है, ठीक है मैम। आउटपुट भी लिखना है क्या मैम? प्रोग्राम होगा तो आउटपुट भी लिखना पड़ेगा। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, ओके मैम। तो अभी हम जस्ट अ सेकंड, स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ma'am. Okay, now we'll solve this assignment and exception handling first. इसमें क्या है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम दैट टेक्स टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट एज इनपुट फ्रॉम यूजर एंड कन्वर्ट इट टू सेल्सियस। फ़ारेनहीट में टेम्परेचर हमें यूजर से लेना है, उसको टेम्परेचर उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। यूज अ ट्राई ब्लॉक टू हैंडल द कन्वर्जन एंड कैच एनी वैल्यू एरर एक्सेप्शन इफ द इनपुट इज नॉट अ नंबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि कुछ फ़ारेनहीट में टेम्परेचर एक्सेप्ट करना है, उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। ठीक है, लेकिन अगर यूजर नंबर की जगह अगर कुछ और डाल देता है तो हमें एक वैल्यू एरर एक्सेप्शन रेज करके या कैच करके उसमें कुछ अच्छा सा मैसेज देना है। ठीक है, यूजर फ्रेंडली मैसेज देना है इफ एक्सेप्शन इज कॉट। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, हम इसका आंसर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। Yes, ma'am. जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है और फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन लेट्स से F2C दैट इज फ़ारेनहीट टू सेल्सियस, और इसको हम पास करेंगे फ़ारेनहीट, राइट।
फ़ारेनहीट। ठीक है, फ़ारेनहीट टू सेल्सियस कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है जो है फ़ारेनहीट से 32 माइनस करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 स्टार 9 से। ठीक है, ये सिंपल फंक्शन है जो क्या करेगा, फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, नाउ हमारा जो मेन प्रोग्राम है उसमें हमें क्या लिखना है, ट्राई। ओके, जहाँ से हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसमें क्या करना है, हमें इसको हम ट्राई एक्सेप्ट यूज करेंगे बिकॉज हमें यूजर से इनपुट लेना है, और अगर यूजर नंबर के जगह पे कोई और इनपुट देता है तो हमें एक्सेप्शन रेज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, fa एक वेरिएबल लेंगे और यूजर से हम इनपुट लेंगे, इनपुट एंटर एंटर टेम्परेचर इन एफ। यूजर से हम कहेंगे एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट, इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में, राइट। नाउ सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल फंक्शन है हमारे पास, सेल्सियस इज इक्वल टू F2C, ये फंक्शन हम कॉल करेंगे और इसको हम FA पास करेंगे, राइट। जो भी यूजर ने वैल्यू दी है वो हमें इसको पास करनी है और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे मैसेज द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज वेरिएबल का नाम क्या है, सेल्सियस, और इसको हम 2 डेसिमल पॉइंट तक ही प्रिंट करेंगे, इसलिए मैं इसके आगे लिखती हूँ 0.2F। ठीक है, देन सी, अगर ट्राई में अगर यूजर टेम्परेचर नंबर में देता है तो ये सारा एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर यहाँ पे यूजर नंबर की जगह पे कोई स्ट्रिंग डालता है तो हियर वी आर कन्वर्टिंग दैट स्ट्रिंग टू फ्लोट। ठीक है, तो स्ट्रिंग तो फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सेप्शन रेज होगा। ठीक है, तो वो हम हैंडल करेंगे एक्सेप्ट में। कौन सा एक्सेप्शन हमें हैंडल करना है, वैल्यू एरर, राइट। और अगर ये एक्सेप्ट में आता है तो हम प्रिंट करेंगे प्लीज एंटर नंबर फॉर टेम्परेचर। समझ में आया, इस कोड में किसी को डाउट है? नो मैम। ओके, अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं ये कोड। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से नहीं एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, पावर शेल से एग्जीक्यूट। एक मिनट, पावर शेल, जस्ट वेट।
बस 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पे पावर शेल यूज करना पड़ेगा क्योंकि हम ठीक है। सो py exception handling, sorry, exception demo.py, this is, so now it is asking enter temperature in F। ओके, तो अगर मैं फ़ारेनहीट में कुछ टेम्परेचर देती हूँ 100, तो क्या हुआ, इसने टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दिया इन सेल्सियस, राइट। नाउ अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू कुछ स्ट्रिंग में देती हूँ एंड इफ आई एम एंटरिंग, प्रेस एंटर, तो ये इसने क्या दिया, प्लीज एंटर नंबर फॉर टेम्परेचर। तो ये मैसेज कहाँ से आया, एक्सेप्ट से, राइट। तो क्या हुआ एग्जैक्टली यहाँ पे, मैंने जैसे ही टेम्परेचर के लिए कुछ स्ट्रिंग दिया या कुछ कैरेक्टर्स दिए, तो इसने क्या किया, एक यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्राई कर रहे हैं कन्वर्ट करने का फ्लोट में। तो इन स्ट्रिंग तो फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हुआ, वैल्यू एरर। तो ये एक्सेप्ट में गया, वैल्यू एरर इसको मिला, और उसके बाद इसके अंदर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हुआ। आया समझ में? एनी डाउट इन दिस? नो मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएट अ कस्टम एक्सेप्शन हेलो क्लास। मैम। यस, मैम हमने पावर सेल यूज क्यों किया था, सिंपल क्यों नहीं किया था मैम पावर सिंपल सेल का? से विजुअल स्टूडियो में जो सिंपल है ना, वो इनपुट नहीं एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं ना यूजर से, तो हमें पावर शेल से ही इनपुट देना पड़ता ओके मैम, थैंक यू। है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रिएट अ कस्टम एक्सेप्शन क्लास इनवैलिड एज एरर। तो अभी हमें क्या करना है, यूजर डिफाइन क्लास डिफाइन करना है, क्लास एक्सेप्शन के लिए, जिसका नाम होगा इनवैलिड एज एरर। ठीक है, write a function that take an age as input and raise this exception if age is not between 0 to 20। ठीक है, तो ये इनवैलिड एज एरर जो क्लास है, ये क्या करेगा, अगर आपने जो एज दिया है वो अगर स्पेसिफाइड रेंज में नहीं है, जैसे 0 to 120 के बीच में नहीं है, तो हमें मैसेज देना है या एक्सेप्शन रेज करना है। एक्सेप्शन रेज करने के बाद वो जो एक्सेप्शन है वो कैच करना है, कैच दिस एक्सेप्शन इन कॉलिंग कोड एंड प्रिंट द एप्रोप्रिएट मैसेज। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं, इनवैलिड एज। ठीक है, मैं इसको कमेंट करती हूँ। Now we are going to define a class इनवैलिड एज एरर। ओके, तो जब भी आप कोई एक्सेप्शन क्लास यूजर डिफाइन लिख रहे हो, तो डोंट फॉरगेट टू इनहेरिट दैट क्लास फ्रॉम बेस क्लास, दैट इज एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे इनिट मेथड, जैसे हम किसी भी क्लास में लिखते हैं, इनिट। ठीक है, इसको हम पास करेंगे सेल्फ एज अ फर्स्ट पैरामीटर, देन एज, या फिर सिर्फ मैसेज देते हैं, जस्ट अ सेकंड, कैसे किया था हमने, यस, इसको हमें मैसेज देना है, inside this we'll write self dot message is equal to message। okay,
Now we'll create a function check age. ठीक है, इसको एक पैरामीटर होगा एज, इसके अंदर क्या करना है, हमें चेक करना है कि इफ एज इज लेस देन 0 और एज इज ग्रेटर देन 120, देन अगर है तो क्या करना है, रेज करना है एक्सेप्शन, राइट। कौन सा एक्सेप्शन रेज करना है, इनवैलिड एज एरर। ठीक है, इसको हमें एक मैसेज देना पड़ेगा, क्या मैसेज देना पड़ेगा, एज शुड बी बिटवीन 0 एंड 120। ठीक है, तो हमने एक्सेप्शन क्लास डिफाइन किया, उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन किया जो एज चेक करेगा। नाउ हम हमारा मेन कोड लिखेंगे, इसमें सबसे पहले ट्राई में हमें एज की वैल्यू लेनी है यूजर से, इंट इनपुट एंटर योर एज। ठीक है, इसके बाद हम कॉल करेंगे, सॉरी चेक एज नाम दिया है, चेक एज और एज। ठीक है, वो जो एज हमने यूजर से एक्सेप्ट किया है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर सही है तो भी हमें कुछ मैसेज देना पड़ेगा, जैसे अगर सही है तो हम जस्ट प्रिंट करेंगे योर एज इज सो एंड सो, सो योर एज इज एज, राइट। लेकिन अगर यूजर ने इनपुट गलत डाला है तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्शन रेज करना चाहिए या प्रॉपर मैसेज देना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेप्ट हम क्या करेंगे, इनवैलिड एज एरर एज ई, ओके, एंड देन विल प्रिंट ई डॉट मैसेज। ठीक है, इसके आगे हम देते एक्सेप्शन फॉर, और वो जो एक्सेप्शन में हमने मैसेज दिया है वो हमें इसके आगे प्रिंट करना है। ठीक है, और एक एक्सेप्शन यहाँ पे आ सकता है, जैसे सेम लाइक प्रीवियस एग्जांपल, हमने यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट किया है लेकिन यूजर ने इंटीजर की जगह पे कुछ और डाल दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू एरर को भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट वैल्यू एरर, और हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एंटर एंटर न्यूमेरिक वैल्यू फॉर एज। ठीक है, तो ऐसे ट्राई के साथ हम जितने चाहिए उतने एक्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट एक्सेप्ट यहाँ पे किया फॉर इनवैलिड एज एरर। ठीक है, अगर इनवैलिड नहीं है लेकिन यूजर ने एज में नंबर ही गलत डाल दिया तो वो वैल्यू एरर भी कर सकता है। ठीक है, नाउ विल एग्जीक्यूट दिस, एंटर योर एज। ठीक है, पहले तो मैं वैलिड डालती हूँ, सो इट इज प्रिंटिंग योर एज, your age is 23। ठीक है, this is normal behavior। now again if I run this, और अगर हम यहाँ पे देते हैं एज जैसे 150, तो इसने क्या देना चाहिए, जो इनवैलिड एज एरर में जो मैसेज है जो है एज शुड बी बिटवीन 0 एंड 20। ठीक है, तो एक्सेप्शन कॉल्ड
और क्या एक्सेप्शन में मैसेज दिया हमने, एज शुड बी बिटवीन 0 and 20, तो वो मैसेज प्रिंट कर रहा है, ठीक है। नाउ अगेन आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस। अभी इस बार हम देंगे कुछ स्ट्रिंग, तो अगर मैंने स्ट्रिंग दिया तो वो हो गया वैल्यू एरर एक्सेप्शन, तो उसके लिए ये मैसेज प्रिंट किया हमने, एंटर अ न्यूमेरिक वैल्यू फॉर एज। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? मैम फ्लोटिंग, मैम यदि फ्लोटिंग में दे देता, फ्लोटिंग पॉइंट यदि विच पॉइंट में दे देता तो मैं फ्लोट भी ले सकते हैं आप, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने फ्लोट भी दे दिया यहाँ पे और मैंने डाला कुछ 12.3, देन ऑल्सो इट इज ओके ना। हमने चेक क्या किया है कि 0 और 120 के बीच में है या नहीं। अगर यही फ्लोटिंग पॉइंट में 120 से बड़ा या कुछ निगेटिव नंबर देती हूँ जैसे -2.3, तो ये एरर देगा, एक्सेप्शन रेज करेगा, राइट। 0 to 120 के बीच में कोई भी नंबर है तो वो एरर नहीं देगा। समझ में आया? यस मैम। ओके। आई थिंक हमें और एक लेक्चर लेना पड़ेगा क्योंकि ये दो और इसमें से फाइल हैंडलिंग के भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, कल ही ले लेंगे हम एक लेक्चर, उसमें हम ये कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ। थैंक यू मैम।